is graduated in Bhakti Shastri, Bhakti Vibhav and Bhakti Vedant from 2001 to 2011 and completed spiritual leadership seminar in Ujjain under His Grace Antama Prabhu in 2008, teaching in committees Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav and Bhakti Vedant, teacher since 2012, off-site and online as well. So with all this wonderful accolades and his credit, we welcome Bhakti Prabhu Maharaj. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Get the mic. Can you get the mic? Yes, mic on. Okay. Close. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunya Behari Jaya Radha Madhava Kunya Behari Gopi Jana Vallabha Devaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Yasodanandana Bhajajananda Yasodanandana Bhajajananda Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha
Hare Krishna. I'm very happy to be with you. मुझे बहुत प्रसन्नता है आप लोगों के साथ आके And it's my first visit to this beautiful temple. ये मेरा पहला विजिट है यहाँ इंदौर पे इस टेम्पल में पहली बार हमारे Amazing temple, amazing darshan of Radha Govinda, very beautiful. बहुत भव्य दर्शन है और बहुत भव्य मंदिर है बहुत अच्छा लगा This evening I would like to speak about Krishna's supreme instructions in Bhagavad Gita. तो मैं आज कृष्ण के भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया है जो सबसे सर्वोपरि निर्देश भगवान ने अर्जुन को दिया है उसके बारे में आज चर्चा करूंगा Before speaking these supreme instructions, Krishna is telling Arjuna, I'm going now to give you the supreme instruction because you are my confidential friend. ये दिव्य निर्देश देने के पहले भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं ये दिव्य निर्देश आपको देने वाला हूँ क्योंकि आप मेरे सबसे परम प्रिय सखा हैं And this supreme instruction starts with text 65. ये सुप्रीम जो इंस्ट्रक्शन है दिव्य निर्देश है वो वर्ष 65 65वें श्लोक से आरंभ होता है Before we reading Krishna's words in Bhagavad Gita, we glorify Lord Krishna with the following words. तो हम इसमें जाने से पहले भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं इन श्लोकों के माध्यम से Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So please repeat. Manmana bhavamat bhakto. Madhyamam namasko. Mama Vaishasi Satyamte. Pratijani Priyosime. So Krishna says, Manmana. भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना Think of me. मेरे बारे में सोचो If you always think of Krishna, what is going to happen? अगर आप भगवान के बारे में भगवान कृष्ण के बारे में हमेशा सोचेंगे तो क्या होगा Krishna says, Bhavamat Bhakto. कृष्ण बोलते हैं भाव मत भक्तो If you always think of Krishna, अगर आप कृष्ण के बारे में हमेशा सोचेंगे you become Krishna's devotee. आप कृष्ण के भक्त बन जाएंगे And if you are Krishna's devotee, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं what are you going to do? तो फिर आप क्या करेंगे Madhyayi, Krishna says. मध्या जी भगवान कृष्ण कहते हैं मध्या जी Then you worship Krishna. फिर आप कृष्ण की पूजा करेंगे कृष्ण की वर्शिप करेंगे And Mam Namaskaru, you offer him respect. माम नमस्कुरु और आप कृष्ण को नमस्कार करेंगे Krishna says, if you always do that, you will come to me. You go to the spiritual world. कृष्ण कहते हैं अगर आप हमारे बारे में हमेशा सोचेंगे तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में जाएंगे कृष्ण के पास जाएंगे So Arjuna speaks Krishna speaks to Arjuna, his friend. कृष्ण अर्जुन को बताते हैं डिफरेंट He says, because you are my very good friend. और कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो Krishna is our best friend. कृष्ण एक बहुत अच्छे दोस्त हैं And Krishna accepts us as friends when we become a devotee. And Krishna accepts us also as friends when we become his devotee.
तो भगवान कृष्ण हमें भी अपने सखा रूप में स्वीकार करेंगे जब हम उनके भक्त बन जाएंगे। So Srila Prabhupada writes in the purport, the most confidential part of knowledge is that one becomes a pure devotee of Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे गुह्यतम विषय के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी कि वो सबसे गुह्यतम विषय वह है कि जब आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। And a pure devotee, what does he do? और भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं? Manmana, मन मना, always thinking of Krishna. हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं। A pure devotee is one who always thinks of Krishna भगवान का एक शुद्ध भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है and acts for Krishna. और कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। So Prabhupada writes, one should not become an official meditator. प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल मेडिटेटर जो ध्यान करने वाले नहीं बनना चाहिए। Life should be molded that one will always have a chance to think of Krishna. हमारे जीवन को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकें। So we have to organize our lives that we always can think of Krishna. तो हमें अपने जीवन को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे बनाना है कि हम भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण कर सकें। Is that very difficult? क्या ये बहुत मुश्किल है? No, no. You come to the temple, नहीं, आप लोग भगवान के मंदिर आए हैं, you attend the morning program, आपने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया है and you think of Krishna in the morning. और आपने कृष्ण के बारे में सोचा है सुबह। You attend the evening program and you think of Krishna in the evening. आप इवनिंग में आते हैं, इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं और आप कृष्ण के बारे में सोचते हैं। And during the day you do service for Krishna, you think of Krishna. और पूरे दिन आप कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, आप कृष्ण के बारे में सोचते हैं। So we can do that 24 hours a day. और ये हम 24 घंटे कर सकते हैं। And when we do that, और अगर हम वो करते हैं, Krishna promises that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna. और इस तरह कृष्ण प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि इस तरह कोई भी प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित बनेगा, वो मेरे धाम को आएगा, मेरे पास आएगा। So, who wants to go back to Krishna? तो कौन कौन भगवान कृष्ण के पास जाना चाहते हैं? Okay. अच्छा, Before I speak further, I will pray to my spiritual master, Prabhupada. तो अभी आगे बोलने से पहले मैं अपने गुरु महाराज और प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रार्थना करूंगा। And you can pray with me. और आप सब भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। Om Ajnanatimandasya Chanam Salakaya Sakshun Unmilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Swamrupkadamayam Dadati Swapadantikam Vandhyam Shigom Shiyuda Padakalam Shigom Vaishnavam Sam Shirupam Jagajatam Sagakana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamsa Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamama Hari Priye Pankakaptu Vyasham Kipasindre Sham Satnam Papanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki. So this is the most confidential knowledge, Krishna says, because through this knowledge you can go back to Godhead, back to the spiritual world. ये सबसे गुह्यतम नॉलेज है, ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने पर आप भगवान के धाम जा सकते हैं। As souls, we are spiritual beings and we belong to the spiritual world. हम सब आध्यात्मिक जीव हैं और हम सब आध्यात्मिक जगत के वासी हैं, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। But somehow or another, we stopped serving Krishna. बट किसी तरह हम कृष्ण की सेवा छोड़ दिए And we forgot Krishna. और हम कृष्ण को भूल गए। And what happens then? और फिर क्या हुआ? We are here. और हम यहाँ हैं। We get a body और हमें एक शरीर मिला है which is temporary. और जो कि टेम्पररी है, क्षणिक है। And having this body is in the material world is like being in a prison. और ये भौतिक जगत में एक रहना एक कारागार में रहने जैसा है। But we have to get out of the prison. पर हमें इस कारागार से बाहर आना है। Srila Prabhupada, one night he told my spiritual master, श्रील प्रभुपाद जी एक रात्रि को मेरे गुरु महाराज को बोलते हैं, this was in 1977, ये 1977 की बात है। and Prabhupada said there are two ways of liberation. प्रभुपाद ने बोला दो तरीके से लिबरेशन, मुक्ति संभव है। Impersonal liberation एक पर्सनल लिबरेशन होती है or negative liberation, और दूसरी होती है नेगेटिव लिबरेशन, and there is positive liberation. पॉजिटिव लिबरेशन। That the negative liberation is that one is in the prison तो नेगेटिव लिबरेशन और पॉजिटिव लिबरेशन होती है। नेगेटिव लिबरेशन है कि हम प्रिजन हाउस में हैं and one thinks that the goal of life is to get out of the prison. और जब वो कारागार में है और वो सोचता है कि जो जीवन का लक्ष्य है इस कारागार से बाहर जाना है। And the prisoner, he digs a tunnel. और जो कैदी रहता है वो वहाँ टनल बनाता है जो कारागार में, Or he scales over the wall, tries to get over the wall. और वो जो दीवार है उसके ऊपर कूद के भागना चाहता है। And when he's out of the prison like that, और इस तरह वो जब कारागार के बाहर आ जाता है is he free? तो क्या वो मुक्त हुआ है? No. नहीं, The police may get him. पुलिस उसको कभी भी पकड़ सकती है। So that's not real liberation. तो ये असली मुक्ति नहीं है। The impersonalists, they realize I'm a spirit soul, but they don't understand that they are a servant of Krishna. The spirit soul is a servant of Krishna. सो जो निराकारवादी हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि वो आध्यात्मिक जीव हैं, बट वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो भगवान के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। वो ये नहीं मानते। But
the real liberation, Prabhupada says, लेकिन जो असली मुक्ति है, प्रभुपाद बोलते हैं, is positive liberation. इस पॉजिटिव लिबरेशन, पॉजिटिव लिबरेशन है वो असली मुक्ति। So the prisoner is in the prison, तो उसमें जो कैदी रहता है वो कारागार में ही रहता है, जेल में ही रहता है, and he writes a letter to the king. और वो राजा को एक पत्र लिखता है, And he writes to the king, I'm sorry, I disobeyed the laws of your country. और वो राजा को पत्र लिखता है, पत्र में लिखता है कि मुझे माफ करिए, मैंने आपके जो इस देश का कानून है उसकी अवज्ञा की, इसलिए कृपया मुझे माफ करिए। And I'm very stupid that I did this. और मैं बहुत मूर्ख था, ऐसा करने के लिए मैंने कानून तोड़ा। But I promise you, मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, I will never do it again. मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। That from now on I will follow all the laws. और अभी से मैं सभी आपके जो कानून हैं, आपके देश के सभी कानूनों को मानूंगा और पालन करूँगा। So please forgive me. तो इसलिए कृपया मुझे क्षमा करिए। And then Srila Prabhupada says, yeah, the king receives this letter, this appeal. श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो राजा है वो ये अपील को स्वीकार करते हैं और रिसीव करते हैं, उनको ये अपील मिलती है, लेटर मिलता है। And the king may say, okay, set him free. और फिर राजा बोलता है कि ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। But probably he will not do that immediately. और हो सकता है वो जल्दी नहीं छोड़े, थोड़ा टाइम लगे। He will inform the prison authorities, this prisoner has made such and such appeal. वो जो वहाँ अथॉरिटी है जेल में, उनको बताएंगे कि ये जो प्रिजनर है, जो कैदी है, इसने ऐसा लेटर पत्र लिखा है। You please observe him. How आप is उसको ध्यान रखिए, ऑब्जर्व करिए वो क्या करते हैं, see how he is behaving. और देखिए वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उन पर नजर रखिए। But the prisoner is behaving very nicely. Now he's following everything. So अगर वो प्रिजनर जो कैदी हैं बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और सब कुछ अच्छे से पालन करते हैं वहाँ, And therefore the prison authorities treat him very nicely. और इस तरह से जो प्रिजन अथॉरिटी है वहाँ के उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। So although he's in prison, he's treated quite nice. तो यद्यपि वो कारागार में है, फिर भी वो अच्छे से रह रहा है। And he's used as an example for all the other prisoners. और वो जो दूसरे कैदी हैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। He's telling the prison authorities tell the other prisoners, look, see how nicely he's behaving, and he gets a better treatment. If you follow his example, you will also be treated very nicely. So प्रिजनर जो प्रिजन अथॉरिटी है वहाँ के बोलते हैं कि देखो वो कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, इसलिए उसके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप लोग भी उसके एग्जाम्पल फॉलो करेंगे तो आपके साथ भी हम अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। Then after some time, the king gets a report that this prisoner is very exemplary and is doing very good. तो इस तरह से कुछ समय बाद जो राजा को रिपोर्ट मिलता है, पता चलता है कि वो जो प्रिजनर है कैदी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। And the king thinks, I need a good servant. और फिर जो राजा है वो सोचते हैं मुझे एक बहुत अच्छा सेवक चाहिए मेरी सेवा के लिए। And he writes the prison authorities, और राजा प्रिजन अथॉरिटी है उनको एक पत्र लिखते हैं, you please send him to the palace. और वो बोलते हैं कि आप कृपया वो जो कैदी है उनको मेरे महल में भेज दीजिए। So from the prison is going to the palace. तो जो कैदी है वो अब महल जा रहा है। And Prabhupada says that's real liberation, positive liberation. तो प्रभुपाद बोलते हैं वो है रियल लिबरेशन, पॉजिटिव लिबरेशन। So if we become a devotee, तो इस तरह से अगर आप भक्त बनते हैं, we do this manmana, always thinking of Krishna. अगर हम ये करते हैं मन मना कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते हैं, Because Machayi, we always serve Krishna, worship Krishna. और हम भगवान कृष्ण को की पूजा करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। So because
we are doing these things, then we become exemplary human beings. अगर इस तरह करते हैं, कृष्ण की सेवा, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम बहुत अच्छे एग्जेम्पलरी ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों में बहुत अच्छे बन जाते हैं। We come to the mode of goodness. और हम सतोगुण में आ जाते हैं। We become peaceful. और हम शांति, हमारे अंदर शांति आ जाती है, शांति प्रिय बन जाती है। And devotees do not suffer like all the other people in this world. तो इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं, वो और जो लोग इस तरह से इतना कष्ट पा रहे हैं, उस तरह से कष्ट नहीं पाते। They get a much better treatment. तो उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है जो भगवान के भक्त हैं। So Krishna, he says it is said in the Bhagavatam also, because when we serve Krishna, then we don't get karma from our activities. तो ये कृष्ण बोलते हैं और भागवतम में भी वर्णन है, अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता, उसका रिएक्शन नहीं मिलता। So Krishna, we may still get some karma a little, but not much. लेकिन थोड़ा बहुत कर्म का फल हमें मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। Krishna gives us only a little suffering. तो भगवान कृष्ण थोड़ा सफरिंग का सही कष्ट देते हैं, ज्यादा नहीं। Just enough so that we are reminded that we should not forget him. So इतना ही कष्ट देते हैं, थोड़ा कष्ट देते हैं, जिससे हम लोग हमेशा याद रखें कि हम भगवान को भूले नहीं और भगवान को हमेशा स्मरण करें। And the devotees finally they come to the point of becoming pure in the heart. और इस तरह भगवान के भक्त धीरे धीरे इस तरह रियलाइज करते हैं और शुद्ध होते जाते हैं, और एक पॉइंट में शुद्ध हो जाते हैं। And then Krishna helps his devotees to go back to the spiritual world. और कृष्ण फिर ऐसे भक्तों को मदद करते हैं भगवान के धाम जाने के लिए, उनके पास आने के लिए मदद करते हैं। So that is what Krishna explains in this verse. You should always think of me. तो यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि आप लोग सदैव मेरा स्मरण करिए। So in the next verse, Krishna says, Sarvam Prachya Mamakam Saramvacham Samsaravapadyam Mokshaishyami Macha. He says to everyone, surrender unto me. So जो नेक्स्ट वर्स है उसमें भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, भगवान बोलते हैं कि सभी लोग मुझे शरणागत हो जाइए। What does it mean, surrendering to Krishna? तो इसका क्या मतलब है, भगवान को शरणागत होने का क्या मतलब है? It's explained in the verse we have been discussing. Manmana, always think of Krishna, following his instructions. ये बताया गया है भगवान को शरणागत होने का मतलब है मन मना, हमेशा भगवान के बारे में सोचना, उनके निर्देशों का पालन करना, जो कि भगवद गीता में दिया गया है। And when you always think of Krishna, Machai, you want to worship him. और अगर आप हमेशा भगवान का स्मरण करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, तो आप उनकी पूजा करना चाहेंगे। And Bhavamat Bhaktu, you become his devotee. और आप उनके भक्त बन जाएंगे। And Krishna said, if you do that, that surrender. और कृष्ण बोलते हैं अगर आप ये करते हैं, ये शरणागत होते हैं, सरेंडर करते हैं, I will take care of you. और मैं आपकी देखभाल करूंगा पूरी तरह। Like when you have young boys, they are nicely taken care of by their parents. जैसे कोई छोटा जो बच्चा होता है, उसको उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, उसके माता-पिता। And the parents make wonderful arrangements for the children. और बहुत अद्भुत, बहुत विस्तृत सब तरह के अरेंजमेंट करते हैं उनके बच्चे के लिए। So the children do not have to worry. तो बच्चों को चिंता नहीं करनी पड़ती उनके बारे में। But the soul is a part of Krishna. We are all children of Krishna. आत्मा भगवान के अंश है, हम सभी भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। And if you do this manmana, always thinking of Krishna, then
you become very dear to Krishna. और इस तरह से आप मन मना करते हैं, भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण करते हैं, तो आप कृष्ण के बहुत प्रिय बन जाते हैं And he's going to take care of you. और वो आपका देखभाल करेंगे। A great example was Prahlad Maharaj. एक बहुत महान उदाहरण हमारे सामने आता है प्रहलाद महाराज का। He did always manmana, always thinking of Krishna. वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। He could not forget Krishna for a moment. वो भगवान कृष्ण का एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं करते थे, हमेशा याद रखते थे। And then Krishna takes care of us. और उस तरह से कृष्ण उनका देखभाल करते हैं। That because he loved Prahlad so much, वो कृष्ण प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम करते थे। that when his father said to him, is your Krishna, your God, is he in the pillar? वो इतना प्रेम करते थे कृष्ण प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु वो पूछते हैं कि क्या आपके भगवान इस खंभे में हैं? And Prahlad Maharaj said, yes, he's in the pillar. प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ ये इस खंभे में हैं। And because Krishna loved him so much, क्योंकि कृष्ण उनको इतना प्रेम करते थे, to prove the words of Prahlad to be true, he appeared from the pillar. तो प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। So he fulfills all the wishes of his pure devotees, those who think always of him. तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का जो उनकी डिजायर है, उनकी इच्छा बहुत अच्छे तरीके से पूरी करते हैं। And a great devotee who was always thinking of Krishna और महान भक्त, भगवान के महान भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। was Prabhupada. जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, A reporter asked Prabhupada, एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछते हैं, what was the earliest moment in your life you remember that you became Krishna conscious? तो आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था जब आपने रियलाइज किया कि आप कृष्ण भावित बन गए हैं? Prabhupada replied, I cannot remember any moment in my life that I was not Krishna conscious. प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा क्षण नहीं याद कर पा रहा हूँ कि मैं कृष्ण भावना भावित नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा कृष्ण भावना भावित था। So that makes Srila Prabhupada very special. इसलिए ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही विशेष बनाता है। Like Prahlad Maharaj, he said yes, he's in the pillar, and Lord Nrsimhadev came out. तो जैसे प्रहलाद महाराज बोले कि ये पिलर में है भगवान और नरसिंहदेव पिलर से प्रकट हो गए। So Nrsimhadev fulfilled the desire of Prahlad. नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज की इच्छा को पूरी किया। Srila Prabhupada, the spiritual master, ordered him to go to America to preach Krishna consciousness all over the world. श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनको आदेश दिए अमेरिका जाने के लिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए। And he went on a boat to Jaladutta. और श्रील प्रभुपाद जी एक बोट जलदूत नामक मालवाहक जहाज में गए। And he arrived in America on the 17th September 1965. और वो अमेरिका पहुंचे 17 सितंबर 1965 को। And there he wrote 2 poems. और प्रभुपाद जी वहाँ 2 पोएम लिखते हैं, 2 कविताएं लिखते हैं। One day later, on the 18th September, he wrote a poet, Markina Bhagavat Dharma. और 18 सितंबर को वो एक कविता लिखते हैं मार्किन भागवत धर्म। And he's praying for all the people of the world, especially those in America. और वो सभी विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी। He's praying that all these souls here
have forgotten Krishna. वो प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी कि जो भी जीव है यहाँ सब कृष्ण को भूल गए हैं। So, and he's praying to the Lord, saying, how am I going to help them? और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं कैसे इनको मदद करूंगा। And he prays for all these conditioned souls that they may become Krishna conscious by the mercy of Krishna. और वो सभी बद्ध जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सभी पूर्ण कृष्ण भावित बन जाएं। So it was his desire that all those who follow him, who take up Krishna consciousness, that they go back to the spiritual world. तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं वो सब भगवान के धाम जाएं, भगवत धाम जाएं। So if we follow Srila Prabhupada, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, Srila Prabhupada will make arrangements to bring us back to the spiritual world. श्रील प्रभुपाद जी सब तरीके से व्यवस्थाएं बनाएंगे हमें भगवत धाम जाने के लिए, भगवत धाम ले जाने के लिए। Because his words have to become true. क्योंकि उनके शब्दों, वो उनके शब्द हैं, वो सत्य होंगे। In 1976, he was in New Mayapur in France, Prabhupada. 1976 में प्रभुपाद जी न्यू मायापुर फ्रांस में थे। And he gave a Bhagavatam class in the morning. और उन्होंने भागवतम क्लास दिया मॉर्निंग में। And in that Bhagavatam class, he said that I promise you, if you chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra, follow the regulative principles, and do some service, you will go back to God. और उस भागवतम क्लास में प्रभुपाद जी ने सभी से प्रॉमिस किया कि अगर आप 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं और सेवा करते हैं, तो आप भगवान के धाम जाएंगे। So you only have to chant 16 rounds. तो हमें क्या करना है? सिर्फ 16 माला जप करना है। That doesn't take long. और ये बहुत समय नहीं लेता। You can chant 1 round in 5 minutes. आप एक माला 5 मिनट में कर सकते हैं। Less than 2 hours. Less than 2 hours chanting. तो 2 घंटे, लगभग 2 घंटे में आप 16 माला कर लेंगे। And follow the regulative principles is not difficult. और 4 नियम पालन करना बहुत मुश्किल नहीं है। Especially when you live in the temple. और विशेष रूप से जब आप मंदिर में रहते हैं। And doing some service. और थोड़ा जो सेवा करते हैं। That's why the temples are here. That's why the temples are here. इसलिए मंदिर यहाँ है कि आप थोड़ा कुछ सेवा कर सकें। To engage you in service. आप सबको सेवा में लगाने के लिए भगवान। When you do service, you are connected with Krishna. अगर आप सेवा करते हैं तो आप भगवान के साथ आपका कनेक्शन है। You will automatically think of Krishna. और आप भगवान का स्मरण करेंगे। So this is a very easy process given to us by Srila Prabhupada. तो ये बहुत सरल प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया है। We must just have that internal mood of this prisoner who says, yes, I made an error, Krishna. So आपको बस ये मूड, you made a mistake. Yeah, we made a mistake. तो आपको बस जो मूड रहना चाहिए, अंदर से ये भाव रहना चाहिए, वो कैदी जैसा जो सोचता है कि यस हमने एक गलती कर दिया है, तो ऐसा ही भाव रखना है कि भगवान हमसे गलती हो गया है, हम यहाँ भौतिक जगत में हैं। So therefore, we all must have that internal mood. Please forgive me, Krishna, that I forgot you. और इस तरह से हमेशा ये अंतरंग भाव रहेगा कि कृष्ण कृपया हमें माफ करिए, हम आपको भूल गए। And you chant 16 rounds. और इस तरह से आप 16 माला का जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र। Do some service. और कुछ सेवा करेंगे। And you will get this positive liberation going back to Godhead. और आपको एक पॉजिटिव लिबरेशन, पॉजिटिव मुक्ति, रियल मुक्ति मिल जाएगी। वो क्या है? भगवान के धाम जाना। And in meantime, और बीच में Shri Radha Govinda, and
In meantime, in association of devotees, you will feel very happy and blissful. और इस बीच में आप भक्तों के संग में बहुत खुश और आनंदित रहेंगे। So these are confidential instructions, Krishna says to Arjuna. ये बहुत ही गुरुतर इंस्ट्रक्शन निर्देश हैं जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। Only the devotees can understand this सिर्फ भगवान के भक्त ही इसको समझ सकते हैं because they have practical experience. क्योंकि उनको प्रैक्टिकल इसका अनुभव है। When you serve Krishna, you become happy. क्योंकि आप अगर कृष्ण को सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। When you chant in the correct internal mood, you become happy. अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और सही भाव के साथ तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। What is the mood of the exemplary prisoner? तो उस जो कैदी था, जिसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, उसका क्या मूड था? Lord Chaitanya has come to show how to chant. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए अब हमें बताने के लिए क्या भाव रहना चाहिए, क्या मूड रहना चाहिए हमारा। Lord Chaitanya is Lord Krishna himself who speaks in Bhagavad Gita. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं जिन्होंने भगवद गीता बोला। He decided to come to be with us in this age of Kali Yuga to show how to surrender to Krishna. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं वो कलयुग में आए हमें दिखाने के लिए और बताने के लिए कैसे हम भगवान कृष्ण को शरणागत हो सकते हैं। How to do this manmana? कैसे ये मनमना कर सकते हैं, भगवान का सदैव स्मरण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया और हमें बताया। It's very simple. ये बहुत सरल है। You chant always. आप हमेशा भगवान के नाम का जप करिए। Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Any questions? किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा महाराज। बस अभी कुछ क्षणों में आप सभी के लिए प्रसादम है, बहुत डिलीशियस प्रसादम है। अभी थोड़ा वेट करिए और प्रसादम लेके जरूर जाइए। हरे कृष्णा महाराज। I am personally so happy. Hare Krishna, like send my Dandavat Pranam on Vishnu Srila Prabhupada and Shri Gurudev. I am personally so happy to have your association here. Before 5 years, I stayed near Radha Desh, ISKCON Belgium for 3 months, and I used to regularly visit there. Yeah. So it's like Nice. all the memories are getting those. My question was, there were so many young disciples of Srila Prabhupada, but we see there was a special place of Sri Yamuna Mataji, and she was so dedicated in serving Srila Prabhupada, and we saw her cookbook, and there are so many stories of her in Vrindavan, in train, and so many things. And those 4 devotees, they went and conquered UK while preaching, given by Bhakti Siddhanta Swami Thakur. He also sent a few sannyasis, but they were unable to do that. And also we see Shanti Prabhu, he preached so nicely in USSR, and he conquered those regions. What we can learn, what qualities these devotees had, that I can and we all can inculcate in ourselves. Okay. Can I just translate? Yes. हरे कृष्णा। तो अनुत्तम प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो पहले प्रभु जी बता रहे हैं कि ये भी बेल्जियम में थे 3 महीने के लिए, तो जहाँ महाराज प्रीचिंग करते थे। तो और उसके बाद प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य थे, और हम देखते हैं उनमें से यमुना माता जी, हरग्रेस यमुना माता जी का बहुत विशेष स्थान रहा है। और प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कुछ भक्तों को प्रभुपाद जी ने लंदन भेजा वहाँ प्रीचिंग स्टार्ट करने के लिए। 3 कपल थे, 6 डिवोटीज, और उन्होंने क्या किया, पूरे लंदन में और उसके बीटल्स के माध्यम से पूरे जगत में प्रचार हुआ। और इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कुछ शिष्यों को विदेश भेजे प्रचार करने के लिए, बट उतना प्रचार नहीं हुआ। सो
कौन से ऐसे गुण थे उनमें कि उन्होंने लंदन जाके और कुछ भी नहीं था उनके पास लेकिन वो प्रचार कर पाए। तो और वो गुण हम इनकलकेट अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ये प्रश्न To answer this question, one must understand who Prabhupada is. To answer this question, one needs first to understand the position of Prabhupada. ये प्रश्न का उत्तर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रभुपाद की विशेष स्थिति, उनकी पोजीशन को समझना पड़ेगा। It is mentioned. It is mentioned in Chaitanya Mangal from Lord Chandas Thakur. Chaitanya Mangal is one of the 11 biographies of Lord Chaitanya. ये चैतन्य मंगल में वर्णन है, ऐसा वर्णन है, और चैतन्य मंगल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे आधारित 11 जो उनकी जीवनी है उनमें से एक है, तो उसमें ये वर्णन है। And there it's mentioned by Lord Chaitanya, in the future I will send my Senapati Bhakta, my expert field commander in Bhakti, who will spread Krishna consciousness all over the world, in every town and village. और उस चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा है उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने एक सेनापति भक्त को भेजूंगा जो भक्ति में बहुत दक्ष होंगे, और वो सेनापति भक्त पूरे विश्व भर में मेरे नाम का प्रचार करेंगे। Who did do that? और वो कौन थे, और वो किसने किया, पूरे जगत में प्रचार भगवान के नाम का किसने किया? It was Srila. वो श्रीला प्रभुपाद जी हैं। In 11 years, he spread it all over the world. सिर्फ 11 साल में पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किया वो है श्रीला प्रभुपाद जी। So Prabhupada was empowered by Lord Chaitanya to do that. प्रभुपाद जी को चैतन्य महाप्रभु से विशेष शक्ति प्राप्त थी, इसलिए वो ये सब कर पाए। And Srila Prabhupada gave this empowerment to his followers. और श्रीला प्रभुपाद जी ने वही विशेष शक्ति, विशेष कृपा अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स को दे दी। And that is why they were successful. इसीलिए वो सफल रहे। That it's just by the empowerment of Srila Prabhupada. तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी की विशेष कृपा उन पर थी, इसलिए ये संभव हो पाया। So that is something we can learn from. तो इस तरह से ये हम सीख सकते हैं। We can also become empowered by Prabhupada. हम लोग भी प्रभुपाद जी के द्वारा विशेष शक्ति, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। But for this we have to surrender to his instructions and his mood and mission. उसके लिए हमें उनके जो निर्देश हैं और उनका जो मूड है और इस मिशन के प्रति पूरी तरह से शरणागत होना पड़ेगा। This is a general principle in devotional service. ये सामान्य सिद्धांत है, ये जनरल सिद्धांत है कि भक्ति का, डिवोशनल सर्विस का, कि आपको पूरी तरह शरणागत होना पड़ता है। With the instruction of the spiritual master comes the empowerment. तो गुरु के निर्देश, जो गुरु महाराज निर्देश देते हैं उसके साथ कृपा शक्ति भी देते हैं उसको पूरा करने के लिए। So Krishna is in everyone's heart and he makes it working. Is seated in everyone's heart and he makes it becoming true. और कृष्ण, भगवान कृष्ण सभी के हृदय में हैं और वो इसको सत्य साबित करते हैं। But he does that because of the will of his pure devotee. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके शुद्ध भक्त की इच्छा है। Therefore, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the most important principle in devotional service is the execution of the order of the spiritual master. That should become one's life and soul. इसलिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सबसे प्रमुख और सबसे
स्पेशल जो विशेष सिद्धांत है भक्ति का वो यह है कि गुरु महाराज के निर्देश को अपना प्राण और जीवन बना लेना और उसको पूरी निष्ठा से उसका पालन करना। Srila Prabhupada took the order of his spiritual master as his life and soul. श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के शब्दों को अपना जीवन और अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया और उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास किया। Prabhupada always says, my only credit is that I'm sincerely trying to execute the order of my spiritual master. प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही क्रेडिट मिलना चाहिए, वो यह है कि मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के जो निर्देश हैं उसको फॉलो करने का प्रयास किया, उसको पालन करने का प्रयास किया। And he sent me all these young boys and girls to help me. और मेरे गुरु महाराज ने ये जो यंग जो लड़के लड़कियां हैं उनको भेजा मेरी मदद करने के लिए। So if we become a pure instrument in the hands of the spiritual master, then every miracle can happen. अगर हम गुरु के हाथों में एक शुद्ध इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, प्योर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, तो कोई भी मिरेकल, कोई भी चमत्कार हो सकता है। And these three couples that came to London, they only wanted to please Prabhupada, nothing else. और जो ये तीन जो कपल्स थे, गृहस्थ थे, डिवोटीज थे, उनका एक ही उद्देश्य था उनके जीवन में कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। And that's the seed of all success. और यही उनकी सफलता का एक You have been in Radhadesh, right? I was there for 3 months. 3 months. आप राधा देश में महाराज पूछ रहे हैं कि राधा देश में In 98, we had a Brahminical council in Radhadesh. महाराज बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिकल काउंसलिंग हुई थी 98 में राधा देश में। And we wanted to please Prabhupada by building a big guest house. और हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे, वहाँ एक बहुत सुंदर अतिथि गृह गेस्ट हाउस बना के राधा देश में। And we all decided we will build a guest house. और हम सब ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वहाँ एक गेस्ट हाउस बने। But we had only debts at that time. और लेकिन उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्ज था। But somewhere or another we started to work on it लेकिन किसी तरह हमने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया because we wanted to please Prabhupada. क्योंकि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे। And somewhere or another, some started fundraising and funds started to come. Yeah. और किसी तरह वक्त फंड रेजिंग स्टार्ट किए और फंड्स फिर आने लगे। Others contacted the architect and arranged for workers, devotee workers, to come from Poland and somewhere or another. And someone gave a big donation and it started to go. और इस तरह से हमने आर्किटेक्ट को कांटेक्ट किया, कुछ डिवोटीज पोलैंड से आए और इस तरह से ये प्रोजेक्ट फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। And 6 years later there was a big guest house. और 6 साल बाद ये बहुत बड़ा, बहुत भव्य अतिथि गृह था, गेस्ट हाउस बन गया। You must have seen it. आपने देखा होगा। So that's the same principle. We desire to please Srila Prabhupada, and Lakshmi comes because Lakshmi is the servant of Krishna and is pure devotee, and everything becomes realized just by this faith. तो वही सेम सिद्धांत का यूज होता है कि आप के अंदर इच्छा है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो फिर लक्ष्मी भी आती है क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण की दासी हैं और जहाँ शुद्ध भक्त रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। So they were successful because they were empowered by Prabhupada. तो वो जो कपल डिवोटीज थे जो लंदन गए थे, वो सफल रहे क्योंकि उनको विशेष कृपा प्राप्त थी प्रभुपाद जी की। Okay, something else? Maybe one more question, the last किसी और one. का Yeah. प्रश्न? Hi, Mr. Maharaj. Thank you very much, Maharaj, for the wonderful session. So, my
Maharaj, in today's session you emphasized on Manmana, that we should always remember Krishna, always think of Krishna. And my question is that we do try our best, like we follow the morning program, we read in the evening, but still when in the daytime we are at our homes living with a family who are not devotees, and when we go to office where they are always talking about materialistic things, then we tend to forget Krishna no matter how hard we try. So how can we get over it that, even though if we are in the material world, we can still remember Krishna and not forget. हरे कृष्णा। सो माता जी का प्रश्न है कि पहले माता जी बोलते हैं बहुत अच्छा क्लास दिए महाराज और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी पूछ रहे हैं कि हम तो महाराज ने बताया कि मॉर्निंग प्रोग्राम करो, सेवा करो, फिर शाम को भी इवनिंग प्रोग्राम करो, इसलिए भगवान के स्मरण कर पाएंगे। तो माता जी पूछ रही हैं कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम तो करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर दिन में घर में रहते हैं और वो घर वाले तो भक्त नहीं है, तो तरह तरह की बातें करते रहते हैं भौतिक, तो इस तरह से हम कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं? In the beginning of the 90s, the first years that I was a devotee, I was also married. I had 2 children. तो बिगिनिंग में, शुरुआत में जब हम महाराज बता रहे हैं जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस बार में नहीं आए थे, तो महाराज भी विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे। I was getting up at 3:30 in the morning. और मैं 3:30 बजे उठ जाता था सुबह I took a shower. और उसके बाद स्नान करता था। Then after dressing, I took the car and was driving 50 minutes to our temple in Ghent, that's in Flanders. Florida. Hmm? Temple का Belgium temple. No, listen. Every morning I was driving with my car to the Namahata Center, which was 15 kilometers further. तो महाराज बता रहे हैं कि वो सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के स्नान करके और कपड़े पहन के और फिर अपनी कार से ट्रैवलिंग करते थे 50 माइल्स और दूर जाके वहाँ एक नामक सेंटर था। So at 4:30 I entered the temple room of the Namahata, and there was only one other devotee who was putting Gaunitai on the altar. और 4:30 बजे महाराज मंगल आरती के लिए जाते थे और वहाँ सिर्फ एक भक्त रहते थे और वो गौर निताई की वर्शिप करते थे। And then we had a morning program in 1 hour, everything. और 1 घंटे में फिर मॉर्निंग प्रोग्राम होता था। We had the Gurvastakam prayers, the Nirsingha prayers, and then we had the Tulsi prayers, and we were reading one page of one verse and purport of the Bhagavatam, and we did the Guru Puja. By 6 o'clock that was finished. तो इस तरह से हम वहाँ गुरुवाष्टकम करते थे और नरसिंह प्रेयर, तुलसी आरती और 1 वर्ष श्रीमद् भागवतम का पढ़ते थे और गुरु पूजा होती थी। तो 6 बजे तक ये सब कार्यक्रम हो जाता। I was driving back home. और मैं फिर से अपनी कार से वापस घर आता था। Waking up my wife and children. और अपने बच्चों और पत्नी को जगाता था। And then 7:30 I drove them to the school and to work. और मैं उनको स्कूल और वर्क ले जाता था। And then I was working during the day. और फिर मैं दिन में कार्य करता था। I was an accountant. और मैं एक अकाउंटेंट था। And I was doing input in the computer. That was in the 90s. The computers were still big. और उस समय मैं क्या करता था, कंप्यूटर में इनपुट करता था वो 90s में। While I was doing the input, I was memorizing verses of the Bhagavad Gita. और जब मैं कंप्यूटर में इनपुट करता था कुछ भी, तो मैं जो भगवद गीता के जो वर्सेस हैं, श्लोक, उसको मेमोराइज करता था, उसको याद करता था। And many times there were challenges. और बहुत बार कई परिस्थितियां आई, चैलेंजेस आए। And I was always praying to Krishna, please help me. I do this as your service. I want to do it good. और मैं हमेशा प्रार्थना करता था कृष्ण से कि प्लीज आप हमें
आप हमारी मदद करिए, मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। And at noontime, I was taking prasad, which I had prepared the evening before. और फिर नून में दोपहर में प्रसाद लेके फिर इवनिंग में आता था And I was chanting a few rounds. और मैं कुछ माला करता था। And then in the afternoon again, I tried to remember verses, or I was hearing lectures that while doing my work. और वर्क करते हुए मैं वर्सेस भगवद गीता के और रिमेम्बर करता था और इस तरह से याद करता। Then when I would come home, I would first chant the balance of my rounds. और जब मैं आता था घर तो जो भी और बचे हुए माला थी वो करता था। And then I would cook for Krishna और फिर मैं कृष्ण के लिए पकाता था भोजन। and offer to Krishna. कृष्ण के लिए भोग बनाता था और उसको Otherwise, भगवान को अर्पित करता था। otherwise I would not have prasad for next day. Otherwise, I would not have prasad for next day. तो यद्यपि मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रसाद नहीं होता। Yeah. So, and then I was in the evening reading Bhagavatam. और फिर मैं शाम को भागवतम पढ़ता था। I was reading about 10 pages every evening. और मैं 10 पेज पढ़ता था। If you do that for 4 years, you read the whole Bhagavatam. अगर आप 4 साल तक ऐसा करेंगे 10 पेज एक दिन में पढ़ेंगे तो आप 4 साल में पूरी भागवतम पढ़ लेंगे। So I just want to say that we have to use our intelligence to organize our day that we can think of Krishna. तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमें ऐसे अपने दिन को बनाना है जिसमें हम भगवान का हमेशा स्मरण कर सकें। And try to avoid engaging in things that are not so important. Do only the important things. और हमें ये प्रयास करना है ऐसी चीजों से बचने के लिए जो कि आवश्यक नहीं है उनको अवॉइड करना है। There may be challenges. उसमें कई ऐसी परिस्थिति आएंगी विशेष। One day is not the other. One day will not be this. Every day will not be the same. हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कठिन परिस्थितियां तो आएंगी। But if we are sincere, gradually we will think more and more of Krishna. लेकिन अगर हम सिंसियर हैं तो धीरे धीरे हम और ज्यादा भगवान का स्मरण करेंगे। I hope this helps. मैं आशा करता हूँ ये आपको Thank करेगा। Thank you very much. I was very happy to be with you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ यहाँ। Srila Prabhupada ki. Thank you. Yeah, very much thankful to you, Guru Maharaj, that all the way you came here, and we're very grateful for such a wonderful celebration. And special thanks to you for sharing your personal journey in Krishna consciousness so kind of you. Thank you very Hare much. Krishna. Thank you. हम महाराज के इतने सुंदर सेलिब्रेशन के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरे साथ सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। इधर बंदी बाबा स्वामी महाराज की जय, की जय। बहुत प्रेमानंद।